hypothesis concepts and how it is done. Okay, what is the procedure, how hypothesis can be done, and can with the hypothesis how we can come with a proper predictive value. Okay, then we have learned in third unit regarding the p value and sample size, like how the these values, like when we do a hypothesis how these values vary according to our predict or our hypothesis क्या है, एक assumption होता है, जो assumption हम कर रहे हैं according to that, on that basis how this sample size and p value are tracked. Okay, then we have seen that matrix, if you remember confusion matrix हमने देखा था, याद है आपको? ठीक है, do you remember confusion matrix, where there is the possibilities of how the hypothesis we have made, how the hypothesis can be judged, or how it can be, on what basis my hypothesis is correct or not. So we measure it by two boolean values, that is true or false. So in that, in third unit we have covered that confusion matrix. तो वो confusion matrix में हम मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी दिखाया था कि confusion matrix कैसे वर्क होता है. अगेन while revising third unit I will again tell you all this concept, so don't worry. फिर हमने थर्ड यूनिट में देखा sensitivity and specificity, how do we come out, how do we calculate, once we do the hypothesis we create a confusion matrix, and the basis, on the basis of that confusion matrix we get two values by using this sensitivity and specificity formulas. Okay, now two terms, that is your numerical distribution of data and comparison of groups. These two topics are remaining from third unit that we will cover in coming lecture. Okay, first today, as we are started with a good fresh morning, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी फोर्थ यूनिट कर रही हूँ कवर. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसमें क्या क्या है, इस यूनिट का नाम है, एज यू कैन सी इट इज नेम्ड एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अब तक आपने क्या देखा, आपने स्टैटिस्टिक्स, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टैटिस्टिक्स. फिर स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स पे कैसे काम कर सकते हैं. ओके, सो वी गो बाय नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स पे हम प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं. हम स्टैटिस्टिक्स पे सिंपल, मीन, मॉड, मतलब स्टैटिस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं हम. वहाँ पे पहले हमने देखा था डेटा कैसे वर्क होता है. देन वी हैव गॉन थ्रू all the types of what is the category of data, whether it is a numerical, whether it is continuous data, discrete data. Then again we analyzed the data and we came up with that एनालिसिस के लिए हमें डेटा को दो टाइप्स में कन्वर्ट कैटेगराइज करना ज़रूरी है, दैट इज़ बाईवेरिएट एंड यूनिवेरिएट. ओके, देन आपने जो भी आपके मैथ्स में सीखा है स्टैटिस्टिक्स में, सो वो सारे फॉर्मूलेज हमने मैथमेटिकली फॉर्मूलेज देखे, मीन और ये सब. मतलब ओवरऑल इन फर्स्ट यूनिट वी सॉ अबाउट इफ यू वांट टू कम अप, if you want to uh, do a survey on a data, or if you want to process a data, firstly we need to understand that data. Okay, and after understanding it, how we can apply the things to come up with a proper statistics for that data. So this is all we covered in first unit. फिर second unit में हमने देखा that what all distributions we can perform on the data. So we started with probability distribution, then we came up with continuous distribution, normal distribution. Okay, so distribution को कौन से characteristic, on what basis to distribute. So प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मेथड्स हमने वहाँ पे देखे. सो इट इज़ ऑल लाइक अगर कोई डेटा है तो वो प्रोबेबिलिटी आए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ता है. सो ऑल दिस वर ऑल योर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड थिंग्स. देन थर्ड में मैंने जैसे बोला हमने थोड़ा सा टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, अजम्पशन के बेसिस पे हम कैसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. अब फोर्थ यूनिट में क्या है, एक्चुअल जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है उस पे एक्चुअल कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं. मेथड्स आई एम टेलिंग,
when to apply these methods, when the data comes in a huge amount. आपको ये समझ में आना चाहिए, जो फर्स्ट यूनिट में हमने फॉर्मूलेज देखे थे, वो फॉर्मूलेज नॉर्मल लेवल ऑफ डेटा वो एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन करने के लिए पहले मुझे समझना चाहिए ना कि ये डेटा पे कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरा डेटा प्रॉपर सेग्रीगेट होके आएगा और फिर आप उस पे फॉर्मूलेज अप्लाई करोगे। तो स्टैटिस्टिक्स पे आप जब वो जो वैल्यूज रहेगी उस पे जो कैलकुलेशन करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय योर, जैसे मीन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर हार्मोनिक मीन, that is the part of data when you will understand that this can be applied, but what all वो स्टैटिस्टिक्स को, सॉरी, वो डेटा को प्रॉपरली पहले रेडी करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, लाइक वी नीड टू, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट वी नीड टू यू नो blush, or we can say we need to firstly concentrate on the data, we need to analyze the data, we need to properly fit that data, whether it is whether that value, whatever value that data value is having, whether it is according to its category or not, तो ये पूरा डेटा को हमें ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स की यूनिट है, जिसमें हमें डेटा को अप्रोप्रिएट वे में प्रोसेस करके लाना है और फिर उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे। So there are various terms here that you will undergo through. Okay, are you getting what is this unit about, everybody? Yes, ma'am. ओवरऑल आई हैव रिवाइज दैट आपको समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट यूनिट में हमने बेसिक देखा जो आपने पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं एवरेज निकालूंगी, लेकिन आपको वो डेटा तब हम क्या देते थे, या फिर पेपर में आपको एक रेडीमेड टेबल आता था और फिर उस रेडीमेड टेबल पे हम ये करते थे। लेकिन अभी ये टेबल कैसे बन रहा है, ये प्रोसेस कैसे किया है कि यही डेटा को मैं प्रोसेस करके मुझे ये वैल्यू आनी चाहिए, तो वो डेटा कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग, तो उस प्रोसेसिंग के पहले उसको क्या क्या बोलते हैं ना, उसको क्या कैसे रेडी करते हैं, वो हमें ये स्टैटिस्टिकल मेथड में सीखने मिलेगा। बिकॉज सी, डेटा अवेलेबल होना, एज यू आई हैव, मैंने स्टार्टिंग में बहुत से एग्जांपल्स दिए आपको कि डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in today's age what we are living in, and when you want to work on certain data, many data sets are paid data sets, they are not available freely on online। ओके, ऑनलाइन लेवल पे ये फ्रीली अवेलेबल भी नहीं होते जो, सो ये डेटा बनता कैसा है, बिकॉज उसको उतना टाइम देके प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमने अब तक जान लिया कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स पे हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी यूज किया तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलेस भी लगा सकते हैं। अगर कंटिन्यूस डेटा होगा तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के वेज से हम उसको फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू आ सकती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिंपल एक फॉर्मूला लगा के उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट when you are into that data, you are using actually that data, and then you are working on that data. But prior to this, how this, what are the methods through which that data has to undergo to get that particular format or to fit into that particular proper data set। आ रहा है समझ में? तो इस यूनिट में हमें सब स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेस और एवरी इसके 1 डेढ़ साल आपको वही वही चीजें हर एक सब्जेक्ट में सुनने मिलेगी, जो आप अभी इस आगे के 3 यूनिट्स में सुनोगे। यू विल हियर दिस टर्म्स in your artificial intelligence, in your machine learning, in your data science, in your IoT related machine learning. So everything what I am teaching you is related to your AI। ओके, तो अब क्या होने वाला है कि अगर मैं ये प्रोसेसिंग करने वाली हूँ तो हर एक जो भी, अगर एआई की सिस्टम है या फिर एमएल का कोई सिस्टम है, एवरीबडी एवरी डेटा हैज टू डू सच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिजाइन देयर ओन
So anybody who can tell me what is standard deviation? वैल्यू, हाँ, मतलब हम क्या करते हैं, मीन से उसको माइनस करते हैं ना फिर। डेटा सेट का काउंट है वो, ठीक है। सो वो हमें क्या देता था कि एक, बट अभी वो वैल्यू मिलने के बाद, वो वैल्यू सी नाउ, स्पेशली अदर ब्रांच पीपल, सी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके इसलिए समझा रही हूँ, और इसको अभी आगे जाके प्रोसेस कर कैसे करना है और यूटिलाइज कैसे करना है उस डेटा पे, डेटा वैल्यू पे, वो हमें यहाँ पे जानना है। समझ में आ रहा है एवरीबडी? ओके, सो सी फर्स्ट यूनिट में हमने वो फॉर्मूला लिया, वो डेटा पे हमने वो अप्लाई किया, और फिर वो एक एक वैल्यू आके फिर वो मैंने टेबल में भी पूरा आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। सो यू गॉट दैट वैल्यू, बट नाउ आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू व्हाट आई हैव टू डू and why I am using then standard deviation. Okay, so in the case of statistical method, first term is standard deviation. This is very important term. It is defined as a deviation. What do you mean by deviation? Anybody? Dispersion, you can say. Change of values, growing of values. Different. Deviations, हाँ, difference. ठीक है, डेविएशन समझते हो ना, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आपको यही नहीं समझ रहा है डेविएशन मतलब क्या है। ठीक है, चेंज ऑफ वैल्यू और द डिफरेंस, यू कैन से। ओके, सो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्यों जरूरी है? अब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आपको एक वैल्यू मिलती है। नाउ दैट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन कंक्लूड्स दैट वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू देयर एवरेज। अगर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो अगर लोअर है, सो इट सेज दैट दैट वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू द एवरेज। अगर हाइयर वैल्यू मिल रही मतलब वो दूर है वो मीन वैल्यू से। अब इसका मतलब किसको समझा है? सी practically why we do all these things, because suppose you are working on a data and you want to say or you want to specify which particular value or which, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक डेटा सेट है जहाँ पे आपका एवरेज आ रहा है, आई वॉन्ट द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अबाउ say 80 in my subject. Okay, so lower the deviation means what, कि जो मेरा एवरेज मैंने सेट किया है अगर वो लोअर रहेगा, जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब क्या है कि वो क्लोज है मेरे, मतलब मेरे जो 80 के पास है सारे जन, और अगर हाइयर वैल्यूज आ रही है उनकी, इसका मतलब क्या है कि वो मेरे मीन किया, आई एम सेइंग स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करने के बाद वो जो फॉर्मूला जो वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू अगर हाई आती है, it means that those students are have not got marks above 80. Okay, so this is the thing which decides there should be certain threshold value set. On that basis I can work on that data. So one of the way is the standard deviation. So in first unit you did this, you got the value, you know the formula, you applied that formula, you, बहुत इजी है वो, मैंने आपको कंप्यूटेशनल वे से भी, और अभिषेक ने उसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाया था आपको डेटा सेट पे कैसे ये करते हैं। ठीक है, लेकिन ये करने के बाद हमें उसका आगे क्या करना है, क्यों ये यूज करना है, तो अगर आप, इट इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड थ्रू विच वी कैन परफॉर्म once this thing on the data to categorize that which data points can fit in my criteria and which can be rejected, or not rejected, or either we can say it can be omitted for some period of time because it is not valid for that particular data, for working of that data. आपको समझ में आ रहा है कि आप वो फॉर्मूलेज यूज क्यों करना चाहते हो? येस एवरीबडी, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. समजते का बाकीचे ब्रांच?
बिकॉज थोडं डिफिकल्ट जाणार आहे हे थोडंसं तुमचं कसं हा पूर्ण जो कोर्स आहे तुमच्या ऑफ फील्ड आहे सो थोडं डिफिकल्ट जाणार आणि इथून पुढे आता सगळं टेक्निकल आहे म्हणजे आणि हे रिलेट करणारे प्रत्येक जे आपल्याला डेटा सेटवर गोष्टी करायच्या आहेत. ओके, जर तुम्हाला कुठे अडचण वाटत असेल तर प्लीज फील फ्री और आय एम अवेलेबल इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट स्टाफ रूम एनी टाइम यू कैन विजिट मी एंड यू कैन पर्सनली मीट मी. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर अभी मुझे याद आया है तो अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है. So those who have attended the exam, INSEM exam, and those who want to go forward with this subject, you need to tick that subject. Those who want to still cancel it, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दी है INSEM की लेकिन कैंसिल करना है ये कोर्स, तो यू कैन डू इट बट यू हैव टू गिव मी अ अंडरटेकिंग. So that process will be guided by your class coordinator and teaches to you. But for concern, I'm telling you, जिसको कैंसिल करना है, जिसको नहीं कंटिन्यू ये करना है सब्जेक्ट, लेकिन अगर उसने ये दिया है NSEM, so we can do that. So you have to give the undertaking, or else जिसको कंटिन्यू करना है just you have to make sure that you pick this subject in your exam form. So all will be guided to you, so don't worry. Just those who are not present there today, because there is a count of 35 with me and today there are only 21 students. Okay, so those who are not attending or those who are not interested, this is the time to decide. Once you tick it in the exam, you have to do it for 3 semesters. Huh? So that is why I'm telling you again and again. ओके, सो समझ रहा है आपको, अब तक आपने देखा लेकिन अभी ये अप्लाई होना चाहिए. तो ये अप्लाई कर मतलब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन करके मैं क्या करूंगी इस स्टैटिस्टिक्स पे. हमने तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन किया और वो फॉर्मूला अप्लाई करके अब तक ये सीखा था, लेकिन अभी उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे. तो अगर मेरे पास, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कोई डेटा सेट है, तो अगर कोई वैल्यू, it will work as a threshold to which data I can relate, which is close to my mean value and which is far away. If it is far away, it means it is far from my mean value, means it is not close to my mean. Okay, okay, and one more point, your standard deviation value can never be negative, so that you have to अंडरस्टैंड. तो इट इज द सेम कंसेप्ट. हमने फर्स्ट यूनिट में इसका बहुत, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट. ओके, वहाँ पे एग्जांपल्स भी देखे थे, तो अभी उसको यहाँ पे सिर्फ एज अ टॉपिक, इट इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड. So the starting point is standard deviation. The second point which is in your course is the normalization. Okay, now normalization, see, मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग में कि आपको ये आगे रहने वाला है, तो ये क्या है एग्जैक्टली exactly? और ये सब चीजें हम सेकेंड यूनिट में, सॉरी फोर्थ यूनिट में इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं. सो जो भी डेटा अब आप प्रिपेयर करने वाले हो, so that, see, that data will be further taken for training. ओके, सो ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब उस कोई भी डेटा को लेके हम नहीं डेटा ट्रेन कर सकते. सो यू रिक्वायर अ प्रॉपर डेटा विथ अ प्रॉपर रिलेवेंसी. रिलेवेंसी समझते हो आप, इट शुड बी रिलेवेंट डेटा. लाइक इफ आई वांट, if I have a data set of a student, there I cannot have the information of any animal or something. So whenever you process a data, that data should be relevant. अब एक बात को समझो, जो भी डेटा आप इंटरनेट, गूगल पे या किसी भी डेटा सेट में देखते हो, वो ऐसे कैसे नहीं बना जाता है. इट इज प्रोसेस्ड एंड इट इज प्रिपेयर्ड. डू यू एग्री दिस, एग्री विथ मी, yes or no? Yes, ma'am. Okay, so the relevancy, because if you are giving that kind of data for to a machine and it is not relevant, and how that, and you just apply the algorithm, machine understands what you give the input and what algorithm it is feed to process that data. So that data should be tested, processed priorly, all the what you can say, उसको फ्लश करना पड़ता है जो भी उसको अनवांटेड थिंग्स है, अनरिक्वायर्ड फील्ड्स है,
नॉट नेसेसरी वैल्यूज है, वो सारे हमें पॉलिशिंग एक एक टाइप का पॉलिशिंग करना पड़ता है उस डेटा को. So these are the methods what you are going to learn here. That is the first one is normalization. Okay, so here you can see normalization. See now this normalization is a term which is a term of removing statistical errors. Okay, now why statistical only? It is mentioning statistical. Actually, normalization process overall. अपने data computer students you have learned in DBMS normalization forms. पढ़े हैं आपने? Yes, ma'am. कौन से है? 1NF, 2NF, One 3NF. NFT. What is the role of normalization there? Role of normalization. To clear our data in such a Correct. So there also that role is to create to remove redundancy. बराबर है ना? Redundant data, database. yes, So ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? For getting that particular relevant stock of data, because unnecessarily training that machine for unused एंड यू कैन से जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उसको उस चीज के लिए ट्रेन करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड सोर्स. Okay, so normalization concept overall does the same things. The normalization here और in machine learning ये concept same है, लेकिन अभी ये statistical मतलब जो statistics पे अगर हम work कर रहे हैं तो वो statistics के data को polishing करेगा या फिर उससे जो भी उसकी practice है वो करेगा. If it is in the case of machine learning, it will be doing the same thing. Whatever data you apply it will do the same thing of removing unwanted things from that particular say data. So आपको why I am telling you, because आगे आपको यही है, तो आप बोलोगे मैम ने तो ये नॉर्मलाइजेशन हमको फर्स्ट मशीन लर्निंग में है और हमें तो वो कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में ही सिखा दिया, या फिर अभी आगे रिग्रेशन का टॉपिक है वो जिसको अभी आपको जैसे कंप्यूटर के स्टूडेंट को नेक्स्ट सेम में डेटा साइंस का सब्जेक्ट है, अभी जिनका डेटा साइंस ऑनर्स है उन्होंने ये अब भी पढ़ा होगा. ओके, फिर से आपको ये टर्म एआई में रहने वाली है. एआई आपको नेक्स्ट सेम में एज अ सब्जेक्ट भी है और एज अ ऑनर सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर स्टूडेंट्स को. Getting? So everything will be repeated, but the concept will vary according to its category. Like now our category is what we are applying normalization for our statistics on what we are working. We are not working on any machine learning project with a machine learning algorithm. We are simply seeing all the topics related to statistics. Like when I work for a statistical data, what all methods are used to uh, what are methods are used to remove the 1 second. Okay, mask. Okay, so what all methods are used to polish that data? वो कैसे करते हैं और उसको प्रॉपर वर्ड्स क्या है वो मैं बता रही हूँ, लेकिन कैसे है बहुत 5 to 10 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ अदर देन टेक्निकल वर्ड्स. तो आपको समझ रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा पे नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है. एवरीथिंग इज सेम इन एवरी सब्जेक्ट. एमएल में जाओ, एआई में जाओ, डेटा साइंस में जाओ, डेटा माइनिंग में जाओ, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है. जैसे अभी मैंने डीबीएमएस में बोला, द कंसेप्ट रिमेन्स सेम बट अप्लाइंग दैट कंसेप्ट ऑन दैट डेटा टाइप और द कैटेगरी ऑफ डेटा चेंजेस. लाइक अभी हम जो हमारे पास जो डेटा रहेगा वो हम स्टैटिस्टिकल डेटा पे ही अप्लाई करने वाले. तो इन स्टैटिस्टिक्स द नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टैटिस्टिकल एरर. Well, now what kind of statistical error is it? Like see, in a repeated measured data, a normalization is sometimes based on property. As I told you, property को किसी भी property पे वो depend करेगा. जैसे उसने अभिषेक ने बोला डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन है, वहां पे 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, 1 2 NF, 1 NF, 2 NF ऐसे. Okay, so same in our statistics we have
to perform normalization based on certain property. अभी नॉर्मलाइजेशन करना मतलब क्या करना है, रिमूव करना है. तो रिमूव क्या करना है ये स्टैटिस्टिक्स में वो हमें देखना है. ओके, सो basically it will be errors, not typical errors, but some sort of statistical errors which can be ignored and which can be removed instead of forwarding it as it is to for processing. These things can be removed where the because it is not required for the processing purpose. So that is normalization. Are you understanding what I want to tell you? Yes, ma'am. Other branches I want reply from you, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, बिकॉज सी तुम्हालाही कळतंय की मी सगळ्या सराउंडिंगचं हे करून तुम्हाला ते एक्झाम्पल्स देते जितकं समजेल, पण मग ते काय होऊन जातंय की टेक्निकली तुम्हाला तर हेच वाचावं लागणार आहे. मी जे एक्सप्लेन करते तो तुम्हाला समजवण्यासाठी एक्सप्लेन करते, बट जेव्हा हे एक्झाम्पल्स थ्रू तुम्हाला येईल किंवा नॉर्मलायझेशन पुढे जसं आपण एआय मध्ये जाऊ तर ते अजून इझी वाटेल. पण ही कन्सेप्ट ही अशीच राहणार आहे, फक्त टेक्निक. जसं आता आपण स्टॅटिस्टिकल डेटावर नॉर्मलायझेशन करतोय, पुढे जाऊन आपण एखाद्या कोर डेटा, सिम्पल डेटा, मशीन लर्निंगचा डेटा विल बी कॅटेगराइज ऑन द बेस ऑफ द. आता स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय की तो डेटा ऑलरेडी त्याच्यावर काहीतरी प्रोसेसिंग झाली आहे, स्टॅटिस्टिक्स अप्लाय केले त्याच्यावर. ओके, आणि स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय की तुम्हाला तिथे काहीतरी त्याचं हे दाखवायचं. ठीक आहे. सो नॉर्मलायझेशन is one of the very important term in every field you go, in every topic, not field, sorry. Okay, in statistics and application normalization can have a range of meaning. Okay, in simplest case normalization of rating means adjusting values measured on different scales to norm. Okay, now scales is what, whatever scales we are using to normalize that data. Okay, then, in more complicated case, normalization may refer to some more sophisticated adjustments. Okay, like probability distribution we have seen. मतलब एक ओवरऑल में आपका इसको बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन मतलब सिर्फ रिमूवल ऑफ एरर, इन्होंने ऐसा सिर्फ डेफिनेशन में बोला है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हम अलग अलग केसेस में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. अब अगर जैसे मुझे जैसे इन्होंने बोला है कि रेटिंग, फिर हो गया आपका एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ योर प्रोबेबिलिटीज, देन द थर्ड इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स. अब क्या होता है जब हम डेटा पे कुछ अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद अगर वो वैल्यू doesn't come as expected by us, तो उस केस में क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो इनपुट हम दे रहे हैं उसमें थोड़ा गैप है. So in this case what we can do, we can apply normalization to bring that value to the closer limits what we have set, or what threshold, as I told you, what threshold we have set. So that is why we can use this kind of normalization setting. Okay, so this normalization can be done for ratings. ओके, तो ये सब चीजें करने के लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो ओके, सो स्केल्स हमें देखे हैं. स्केल्स आपका जो ये होता है हाई बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स, हाई लो. ओके, सो फर्स्टली वी कैन डू ऑन द रेटिंग्स. Secondly, we can do on probability distribution on entire, to bring the entire probability distribution to the adjusted alignment. ओके, जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, लेकिन आपको लग रहा है कि वो प्रॉपरली नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेड आउटकम व्हाट वी वांट, सो we can perform this adjustment of normalization on the overall probability distribution to bring a, a value to a certain range of aligned outcome. ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैंने बोला है कि मुझे मेरे पास से 45 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 45 स्टूडेंट्स है और मुझे उसके 5 ग्रुप्स बनाने हैं, मुझे उसके 5 ग्रुप्स बनाने हैं. सो इस केस में आप क्या करोगे, 5 ग्रुप्स बनाने हैं एंड आई हैव सेड दैट कि that groups must contain all the multidisciplinary talented students. So this is my criteria. तो इस केस में आप कैसा डेटा सेट बनाओगे,
आप पहले तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको उनके नाम लिस्ट आउट करोगे, उनकी हॉबीज लिस्ट आउट करोगे, फिर उनका ब्रांच, उनका पर्सनल स्टेटस, बॉडीली स्टेटस, एंड देन यू विल स्टार्ट. नाउ आई से दैट 5 ही ग्रुप्स होने चाहिए. आई डोंट वांट वन मोर, नॉट अ सिंगल मोर, क्या बोलते हैं, एक भी ज्यादा ग्रुप नहीं चाहिए. तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे वो 5 ग्रुप्स बनाओगे? 45 स्टूडेंट्स एंड 5 ग्रुप्स. Yes, anybody? Anybody? What kind of adjustment we can do here? And I have, what is my criteria or my जो ये है, क्या बोल सकते हैं, क्राइटेरिया या फिर हाँ क्राइटेरिया ओनली ना, that every group should be having all kind of students. ऐसे नहीं होना कि चाहिए कि कोई डांसिंग में एक्सपर्ट है तो वो एक ग्रुप में आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए. What can be done on such kind of data? ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कितने, पांच पांच ग्रुप बनाने हैं 45 के. कैसे बनाओगे? 45 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 9 students per group. 9 स्टूडेंट्स पर ग्रुप. ओके, फिर अभी आपको पता है 9 का काउंट हो गया है, तो आपको नेक्स्ट टर्म क्या करना है, वो जो फील्ड दी है मैंने, फील्ड कौन सी, आपकी हॉबीज की, अकॉर्डिंग टू द हॉबीज और एक्सपर्टाइज, वॉट एवर यू आर एक्सपर्टाइज, एक एक को, अगर जैसे डांसिंग में 6 जन है और सिंगिंग में 3 जन है, तो कुछ तो कर रहे हैं ना वो, तो वी कैन एवरेज कि एक डांसिंग में इधर इसको डाल दिया, दूसरे ऐसे भी हो सकता है किसी को कोई क्वालिटी नहीं, तो ऐसा नॉर्मल पर्सन एक ग्रुप में जा रहा है, जिसको बहुत सी क्वालिटीज है वो एक ग्रुप में जा रहा है. तो यू कैन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस. तो दिस काइंड ऑफ अलाइनमेंट, एडजस्टिंग द वैल्यूज इनटू द अलाइनमेंट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप में सारी की सारी क्वालिटीज आ गई और एक ग्रुप में कुछ नहीं है. तो वी शुड बैलेंस एंड वी शुड ब्रिंग, we should adjust, we should perform these adjustments to bring that particular data set to a aligned form where everything is balanced. तो अगर मैं इस बैलेंस डेटा को कोई भी मशीन में दोगी तो the outcome is not going to reflect differently. Getting? So that is why they are saying you can perform normalization on the entire probability distribution to adjust the values into an alignment. So normalization overall is not only removing the errors or cleaning the data, it is bringing that data to a proper format by adjusting the values. So during the adjustment, you can remove any. Like see, in that example, I told you that I want 45 students. By mistakenly, you have taken a student who doesn't have any quality. So in this case, I can replace that student. This is what I am doing a normalized work. I don't want that student because he is not fitting in any category. So I just remove that student from that 45 wala group. Either I can replace him और I can keep that data value fit. लेकिन उसको वहां पे रख के उसका कुछ यूज नहीं है, उसको आगे प्रोसेसिंग में देके क्यों एनर्जी वेस्ट करें हम? आ रहा है समझ में आपको? Yes, ma'am. बाकीचे Yes, ma'am. समजताय का? मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. ही खूप टेक्निकल टॉपिक्स आहे. मी एक्झाम्पल तुम्हाला याच्यासाठी सांगते. सी तुम्ही टेक्निकली तर एक्झाम साठी वाचणारच आहात, पण हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल बेस मध्ये या टॉपिक्स कसे काय युजफुल होत आहेत ते मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते. ठीक आहे? सो हियर द थिंग इज नॉर्मलाइजेशन इज डन फॉर रिमूवल ऑफ द say statistical errors in the case of statistics. Then how it can be done? रेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, स्केल को चेंज करने, सॉरी रेटिंग पे हम काम कर सकते हैं डिफरेंट स्केल को चेंज करने से. फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ द वैल्यूज. अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको पता है, फॉर्मूला है और वो हम अप्लाई करते हैं. ठीक है? इन केस ऑफ स्कोर्स वहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं. सो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, तो जो डेटा है उसको प्रॉपर आगे जाके अननेसेसरी प्रोसेसिंग अवॉइड करने के लिए हम एक तो उसको वहां से निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं so that data can be the processing can be done on the proper set of data. So here आप अभी के लिए आप वो एग्जांपल याद रखो, जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा उसका लिंक लगेगा. और नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग दैट
nothing but a process of removing of the statistical error in repeated measured data. Okay. Yes, any doubt here? Any No, doubt? ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Now the next concept is feature scaling. So firstly, okay, why scaling is needed, that I will tell you, and why, what is feature scaling. Okay, then we will see the methods. Okay, now firstly हमें ये जानना है कि फीचर स्केलिंग मतलब फीचर्स मतलब क्या होते हैं. तो इन केस ऑफ आर डेटा फीचर्स मतलब क्या हो गया कि आपके डेटा की हर एक फील्ड जो होती है ना वो हमारा यहाँ पे फीचर होता है. ठीक है, फीचर मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर कोई पर्सन है या फिर कोई बॉल है तो बॉल के फीचर्स क्या हो गए, उसका शेप, उसका कलर, उसका डायमेंशन. दीज आर द फीचर्स ऑफ दैट बॉल. ओके, नाउ फीचर स्केलिंग क्यों करना है. तो एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट व्हाई computer students why this feature scaling can be is to be done. How is to be done, I will tell you why is to be done. काही वेळेस आपल्या एक्झिस्टिंग डेटावरून आपल्या मॉडेलची इफिशियन्सी वाढवण्यासाठी आपल्याला त्याच्यावरून एक नवीन कॉलम क्रिएट करावा लागतो. Yes, very good, Abhishek. ओके, सो फीचर स्केलिंग, एक तो पहले आप ये समझो फीचर्स मतलब क्या है कि जो भी फील्ड्स फील्ड्स हाँ, जैसे आप भी के लिए एक एग्जांपल ले लो कि जो एक्सेल फाइल बनती है, एक्सेल फाइल में जो हेडिंग्स आप देते हो कॉलम को हर एक, ओके, वो हो गया आपके डेटा वेरिएबल्स मतलब डेटा फील्ड्स, और उसमें जो आप वैल्यूज डालते हैं वो क्या हो गया आपकी डेटा वैल्यूज. सो फीचर स्केलिंग मतलब क्या है कि आपको वो डेटा की मतलब जो भी फीचर्स है उसको स्केलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है. So firstly, why there is scaling needed? Okay, so feature scaling should be performed on independent variable. जैसे मैंने बोला आपको independent variable मतलब क्या है कि independent field, वो जो fields है उसको variables बोलते हैं, data variables, और जो variables में आप values डालते हैं उसको बोलते हैं data values. Okay, that independent variables vary in magnitudes, range, यूनिट्स टू स्टैंडर्डाइज टू अ फिक्स्ड रेंज. ओके, तो हर एक फील्ड की हर एक जो आपका फील्ड होता है, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, अभी नेम का डेटा टाइप अलग है, उसका यूनिट अलग है, इट इज अ स्ट्रिंग. अब रोल नंबर का यूनिट इट इज अ यूनिट और इट इज अ डेसिमल वैल्यू. ओके, सो हर एक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है और उसके जो डेटा टाइप्स है या फिर जो उसकी यूनिट्स क्या कह सकते हैं उसको, मेजरिंग यूनिट जो होते हैं मेजरिंग, वो अलग होते हैं, तो उनको एक फिक्स्ड रेंज होती है. ओके, इफ नो स्केलिंग देन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम assign higher weight to greater values regardless of unit of that values. तो अगर हमने यहाँ पे स्केलिंग अप्लाई नहीं की, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है या फिर डेटा साइंस के जो रेडीमेड एल्गोरिदम्स है वो क्या कर देते हैं, हायर वेट टू ग्रेटर वैल्यू, मतलब जो भी जिस भी वेरिएबल की ग्रेटर वैल्यू है उसको वो हायर वेट लगा देते हैं. As the range of values of raw data varies widely in some machine algorithm, objective function will not work properly without normalization. तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म नहीं किया उस रॉ डेटा पे, तो क्या होगा, आप जो रेडीमेड जो अल्गोरिदम्स है, मशीन लर्निंग के अल्गोरिदम्स, वो प्रॉपरली नहीं वर्क करेंगे. दैट इज व्हाई दिस नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग इज इम्पोर्टेंट. नॉर्मलाइजेशन में ही स्केलिंग की जाती है. ओके, नॉर्मलाइजेशन का ही पार्ट है स्केलिंग. जैसे हमने क्या देखा, नॉर्मलाइजेशन को हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. क्यों एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, टू रिमूव द रिपीटेड डेटा वैल्यूज, अनरिक्वायर्ड terms, columns, or some fields. Okay, so by this scaling and normalization we can improve this standardization of that particular data variable. Okay, so here there is an example, ml का example है कि consider that the value of 1000 gram is greater than 2 kilogram, or the value
3000 meter greater than 5 kilogram, and hence the algorithm will be a wrong prediction. Okay, so इस केस में क्या समझे आप? ML will consider that